بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی ناول کیسا لگ رہا ہے؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایپیسوڈ 3۔ یہ واقعہ میدان حطین کے بعد کا ہے، جب صلیبیوں کو شکست فاش ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک عظیم فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ کے بعد ایک شخص جس کا نام بیلیان تھا میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ بیلیان عیسائیوں کا ایک بڑا سردار تھا۔ جب وہ میدان حطین سے بھاگا تو اس نے اپنے ایک آدمی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا اور درخواست کی کہ اسے بیت المقدس میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے بچوں سے مل سکے جو اس وقت بیت المقدس میں موجود تھے اور انہیں کسی محفوظ مقام پر لے جا سکے۔ چونکہ بیلیان کو سلطان کی فوج کے قریب سے گزر کر بیت المقدس جانا تھا، اس لیے اس نے اجازت طلب کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلیٰ ظرفی اور رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اجازت دے دی۔ تاہم سلطان نے شرط رکھی کہ بیلیان صرف ایک دن بیت المقدس میں قیام کرے گا۔ بیلیان نے اس شرط کو قبول کیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ صرف اپنے اہل خانہ کو وہاں سے نکالے گا اور پھر کبھی بھی سلطان کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لے گا، لیکن بیلیان اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ بدقسمتی سے جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوا، اس وقت شہر میں کوئی بڑا رہنما موجود نہ تھا، کیونکہ میدان حطین میں صرف بیلیان ہی نہیں بلکہ بیت المقدس کا بادشاہ اور کئی دیگر عیسائی رہنما بھی سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے تھے اور انہیں دمشق بھیج دیا گیا تھا۔ ایسے میں جب بیلیان بیت المقدس پہنچا تو اس کا بہت پرتپاک استقبال کیا گیا۔ لوگ اسے بیت المقدس کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ بیلیان نے لوگوں کو بتایا کہ وہ سلطان مسلمین سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ صرف ایک دن قیام کرے گا۔ اس پر عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا اسقف نے بیلیان سے کہا، میں تجھے تیرے وعدے اور گناہ سے زیادہ بڑی ذمہ داری دیتا ہوں۔ اگر تو اس حالت میں بیت المقدس کو چھوڑ دے تو یہ وعدہ توڑنے سے بڑا گناہ ہوگا۔ جہاں بھی جائے گا ذلت اور رسوائی تیرے ساتھ ہوگی۔ بیلیان اس قول سے متاثر ہوا اور وہیں رک گیا۔ اس کے بعد عیسائی رہنماؤں نے خزانے کھول دیے اور جتنا ممکن ہو سکا بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں لشکر تیار کرنے لگے۔ اس طرح شہر میں تقریباً 60,000 افراد سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی نے میدان حطین میں دشمن کو زبردست شکست دینے کے بعد وقت ضائع نہ کیا اور شہر تبریہ پر قبضہ کر لیا۔ صرف 4 دن بعد وہ تیزی سے ساحلی شہر عکا کی طرف بڑھے۔ یورپ کے عیسائیوں نے 90 سال پہلے عکا شہر مسلمانوں سے چھین لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر پر باز کی طرح حملہ کیا۔ شہر میں موجود عیسائی فوج سلطان کی یلغار کا مقابلہ نہ کر سکی۔ یوں مسلمان شہر عکا پر قابض ہو گئے۔ سلطان نے شہر کی مسجد میں نماز ادا کی، جس پر عیسائیوں نے قبضہ کر کے اسے گرجا گھر میں تبدیل کر دیا تھا۔ عکا فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور انہیں فلسطین کے دیگر شہروں کو فتح کرنے بھیجا۔ اس وقت فلسطین کے کئی علاقے عیسائیوں کے قبضے میں تھے۔ ایک لشکر نے آگے بڑھ کر صفوریہ اور الفولا کے شہر فتح کیے۔ ایک اور لشکر نے ساحلی شہر حیفا اور کیسریا پر قبضہ کیا۔ تیسرے لشکر نے ضبطہ اور نابلس کے شہر فتح کیے۔ اسی دوران سلطان نے مصر میں موجود اپنے بھائی العادل کو پیغام بھیجا۔ سلطان کے چھوٹے بھائی سیف الدین العادل اس وقت مصر کے گورنر تھے۔ سلطان نے ان سے کہا کہ وہ فلسطین آئیں تاکہ دونوں بھائی مل کر سرزمین مقدس کو عیسائیوں سے پاک کریں۔ جیسے ہی العادل کو یہ حکم ملا، وہ فوراً قاہرہ سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں 2 عیسائی قلعے میرجل اور یافا آئے۔ سیف الدین العادل نے ان دونوں قلعوں پر جوش اور طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور بغیر وقت ضائع کے ان پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہ تیزی سے فلسطین کی جانب روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی بھی عکا سے اپنے حصے کی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے توران شہر فتح کیا، پھر وہ سمندر کے کنارے کی جانب بڑھے۔ اس کے بعد صرف ایک ہفتے کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے شہر جیسے سلطان سیدون، بیروت اور جبل کو فتح کر لیا۔ ان شہروں کی عیسائی فوجیں سلطان کے سامنے سر جھکا کر تباہ ہو گئیں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ساحل پر 2 بڑے شہر باقی رہ گئے تھے اور 2 مقامات جو کیمپلرز اور ہاسپٹالرز کے قبضے میں تھے، جنہیں ابھی فتح کرنا باقی تھا۔ یہ 2 شہر اسقلان اور بیت المقدس تھے۔ مختلف شہروں کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے اشکلان کی طرف رخ کیا۔ اس شہر میں عیسائیوں کی بہت بڑی فوج موجود تھی۔ سلطان نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کے اندر جمع شدہ عیسائیوں نے زبردست مزاحمت کی۔ سلطان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ عام طور پر کسی شہر یا قلعے پر حملہ جمعے کے دن کرتا تھا۔ اسی روایت کے تحت سلطان نے اشکلان کو جمعے کے دن فتح کیا۔ اشکلان کی فتح عیسائیوں کے خلاف سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑا حوصلہ، فراخ دلی
और रहम का मुजाहरा किया। उसने साबिक बादशाह बैतुल मुक़द्दस, गाई और उसके तमाम मशीरों और सरदारों को जो दमिश्क की कैद में थे रिहा कर दिया। जब सुल्तान अश्कलान फतह करने के बाद अपनी फ़ौज के साथ मौजूद था तो बैतुल मुक़द्दस के ईसाइयों का एक वफ़द सुल्तान की खिदमत में आया। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से सुलह के लिए बात करना चाहते थे। कहा जाता है कि उस वक्त सूरज ग्रहण लगा जिसे ईसाइयों ने अपने लिए मनहूस शगुन समझा। इस वफ़द ने सुल्तान से दरख्वास्त की कि वो बैतुल मुक़द्दस पर हमला न करें और शहर को ईसाइयों के कब्ज़े में ही रहने दें। सुल्तान ने वफ़द से खिताब करते हुए फरमाया, मेरे अकीदे के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस अल्लाह का घर है और तुम भी इसे ऐसा ही मानते हो। मैं ना अपनी मर्जी से इस पर मुहासरा करूँगा और ना ही हमला। अमन और तरतीब से इस शहर को फतह करने के लिए मैं बैतुल मुक़द्दस के रिहायशियों को इजाज़त देता हूँ कि वो शहर को जितना चाहे मजबूत कर लें और उसके इर्द गिर्द 15 मील तक की ज़मीन को काश्त करें। अगले जुमेरात तक अगर वो समझते हैं कि वो मेरे खिलाफ शहर की हिफाजत कर सकते हैं तो वो बैतुल मुक़द्दस को संभाले रखें। अगर मैं हमला आवर बनूं तो अगर वो मेरा मुकाबला कर सकते हों तो कर लें, लेकिन अगर उन्हें किसी की मदद की उम्मीद ना हो और उन्हें यकीन हो कि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते तो वो बिना लड़े अमन से शहर मुझे हवाले कर दें। मैं वादा करता हूँ कि मैं बैतुल मुक़द्दस के तमाम रिहायशियों, उनके मालो दौलत और जायदाद की बेहतरीन हिफाजत करूँगा। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानिब से ईसाइयों के लिए सबसे बेहतरीन पेशकश थी और उस ज़माने के ख़यानत पसंद दुश्मनों के मुकाबले में सुल्तान का रवैया निहायत शराफत, इंसाफ और सखावत वाला था। मगर अफसोस के बैतुल मुक़द्दस के ईसाइयों के इस वफ़द ने सुल्तान की पेशकश नादानी में रद्द कर दी और जवाब में कहा कि अगर खुदा ने चाहा तो हम ये शहर मुसलमानों के हवाले कभी नहीं करेंगे, क्योंकि यही वो शहर है जहां हमारे नजात दहिंदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए जान दी थी। ये सुनकर सुल्तान उनके अकीदे की पुख्तगी पर खुश तो हुआ, मगर साथ ही उसने उनके सामने कसम खाई कि मैं बैतुल मुक़द्दस को तलवार के ज़ोर पर फतह करूँगा, मगर उसकी हुर्मत और इज़्ज़त पर आंच नहीं आने दूंगा। सुल्तान की ये सखावत उस वक्त मज़ीद नुमाया हो गई जब बैतुल मुक़द्दस के लोगों ने ओहद शिक्न बिलियान की मिसाल दी। वही बिलियान जो सुल्तान से एक रात के लिए इजाज़त लेकर शहर गया था, मगर बैतुल मुक़द्दस के लोगों ने उसे ओहद शिकनी पर मजबूर किया और उसे वहाँ का हाकिम मुकर्रर कर दिया। मगर इन तमाम बातों के बावजूद सुल्तान ने उसकी ओहद शिकनी को बर्दाश्त किया और वफ़द से हुस्ने सुलूक के साथ पेश आया। इसके साथ ही उसने वफ़द को जुमेरात तक का वक्त दिया कि अगर वो शहर का दिफा करना चाहते हैं तो करें, अगर किसी से मदद मांगना चाहते हैं तो मांग लें, अगर किसी से राब्ता करना चाहते हैं तो कर लें। इसके बाद सुल्तान शहर पर हमला करेगा। जब वो वक्त मुकम्मल हो गया, सुल्तान अपनी फ़ौज के साथ हरकत में आया और बैतुल मुक़द्दस की तरफ कूच किया। कहा जाता है कि सिर्फ 75 यानी 75 दिनों की कलील मुद्दत में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़लस्तीन के तमाम बड़े शहर ईसाइयों से छीन लिए। बाकी सिर्फ बैतुल मक़दस रह गया था, जो ईसाइयों का फ़लस्तीन में आखिरी मजबूत किला था। ये शहर हमेशा से ही मुसलमानों और ईसाइयों का मुश्तरका मरकज़ रहा है और सलीबी जंगों का हदफ बना रहा। सुल्तान अपनी फ़ौज के साथ बैतुल मक़दस पहुंचा। सबसे पहले उसने बैतुल मक़दस के 2 दरवाज़ों बाबे दाऊद और बाबे स्टीफन के दरमियान मार्च किया। शहर में इतने ज़्यादा ईसाई जमा हो चुके थे कि घरों और गिरजाघरों में रहने की जगह भी बाकी न बची थी। मार्च के बाद जब सुल्तान ने ज़मीन का मुआयना किया तो उसे एहसास हुआ कि उसने गलत जगह पर लश्कर ठहराया है, क्योंकि इस जगह से किले की फसील से चलाए गए तीर सुल्तान की फ़ौज को नुकसान पहुंचा सकते थे। मजीद ये कि दिन के वक्त हमले की सूरत में सूरज की रोशनी सीधी सुल्तान की फ़ौज की आंखों में पड़ती, जो मुश्किलात पैदा कर सकती थी। इसलिए सुल्तान ने 5 दिन तक दूसरे इलाकों का मुआयना किया और फिर अपनी फ़ौज को वहां से उठाकर मशरिक की जानिब ले गया। जब अहले शहर ने देखा कि सुल्तान अपनी फ़ौज के साथ उठकर मशरिक की तरफ जा रहा है तो उन्होंने समझा कि सुल्तान बैतुल मक़दस पर हमला नहीं करना चाहता और मुहासरा ख़त्म कर दिया गया है। ये सोचकर वो गिरजाघरों में भागे और खुशी मनाने लगे। लेकिन जब अगली सुबह सूरज तुलू हुआ और उन्होंने देखा कि सुल्तान ने जबले ज़ैतून पर खेमा गाड़ लिया है और वहाँ इसके झंडे लहरा रहे हैं, तो शहर के लोग और अफवाज हैरानो परेशान हो गईं, क्योंकि सुल्तान ने शहर के 40 आदमियों वाले मकाम से हमले की तैयारी कर ली थी। इसके बाद सुल्तान की फ़ौज ने बाबे स्टीफन की जानिब से हमला शुरू किया। सुल्तान के मुक़द्दमतुल जैश ने भी शहर पर हमला किया। शहर में लड़ाई और तीरबाजी का सिलसिला जारी रहा। मुसलमान बार बार शहर पर हमला करते रहे और फसील का एक हिस्सा गिरा दिया। शहर में हर तरफ शोरगुल मच गया।
जब ये खबर फैली कि मुसलमान शहर की फसील का एक हिस्सा गिरा चुके हैं और अब वो इस रास्ते से अंदर दाखिल होने वाले हैं, तो लोग दुआएं करने लगे, गुनाहों से तौबा की, गिरजा घरों में गए और खुदा से रहम मांगने लगे। माओ ने अपनी बेटियों के बाल काटकर ठंडे पानी में डाल दिए। पादरियों और दीगर मजहबी पेशवाओं ने बड़े सलीब उठाए, तौबा करते हुए शहर में जुलूस की सूरत घूमने लगे, मगर उनकी दुआएं कबूल ना हुईं। सुल्तान ने शहर की हुर्मत का एहतराम करते हुए अचानक फसील के गिरे हिस्से से दाखिल होने का फैसला किया ताकि शहर पर आम हमला ना हो। शहर के दूसरे तरफ का हुक्मरान बेलियान, जिसने वहां अफवाज तैयान की थी, रात को फरार हो गया। अगरचे उसने सिपाहियों को वहां ठहरने के बदले सैकड़ों सोने के सिक्के देने का वादा किया था, मगर कोई ना रुका। शहर के ईसाई बाशिंदे भी बेलियान पर दबाव डालने लगे कि वो मुसलमानों के सामने हथियार डाल दे, क्योंकि अगर मुसलमान एक बार शहर में दाखिल हो गए तो वो इंतकाम में बेशुमार लोगों को कत्ल कर देंगे। इस सूरत हाल में बेलियान और बड़े पादरी ने मशवरा किया कि शहर का एक हिस्सा गिर चुका है, इससे पहले कि मुसलमान ज़बरदस्ती दाखिल हों और कत्लेआम करें, बेहतर है कि सुल्तान इस्लाम के पास जाकर सुलह की जाए। बेलियान एक वफ्द के साथ सुल्तान के पास आया। उस वक्त सुल्तान जबले जैतून की चोटी पर बैठा हुआ था। बेलियान ने सुल्तान से बातचीत की और कहा, ए मुसलमानों के अजीम सुल्तान, बैतुल मक़दस में मौजूद ईसाइयों की तादाद बेशुमार है, मगर वो मौत से डरते हैं और ज़िंदगी से नफ़रत करते हैं। आप उनको माफ़ कर दें, शहर आपको दे दिया जाएगा। अगर आपने माफ़ ना किया तो हम सब मरने के लिए तैयार हैं। खुदा की कसम, हम अपनी औरतों और बेटियों को कत्ल कर देंगे, मालो दौलत को आग लगा देंगे और शहर में एक पैसा भी आपके लिए ना छोड़ेंगे। शहर में मौजूद मुसलमानों के मुकद्दस मकामात तबाह कर देंगे। शहर में मौजूद मुसलमान कैदियों को भी कत्ल कर देंगे। जानवरों को भी ज़बह कर देंगे ताकि आपको कुछ खाने को ना मिले। सुल्तान खामोशी से उसे देखता रहा, क्योंकि वो पहाड़ की चोटी से देख रहा था कि उसकी फ़ौज शहर में दाखिल हो चुकी है। जब बेलियान खामोश हुआ तो सुल्तान ने फरमाया, कितने बेवकूफ़ हो तुम, क्या फतहशुदा शहर के लिए भी सुलह की शराइत तय की जाती हैं? बेलियान शर्मिंदा हो गया, लेकिन सुल्तान ने रहम का मुजाहरा किया। उसने हुक्म दिया कि शहर के तमाम बाशिंदों को आज़ादी दी जाए या वो जहाँ चाहें जा सकते हैं। शहर को 40 दिन के अंदर खाली करना होगा। शहर से निकलने के लिए हर मर्द को 10, हर औरत को 5 और हर बच्चे को 1 दीनार देना होगा। जिनके पास पैसे ना हो, उनका फिदिया वो पैसा अदा करेगा जो इंग्लिस्तान के बादशाह ने चीन से बेलियान की मदद के लिए भेजा था। 40 दिन के बाद जो शहर में बाकी बचेगा वो गुलाम तस्वुर किया जाएगा। ईसाइयों ने इन शराइत को कबूल किया और शहर खाली करने लगे। सबसे पहले बेलियान ने फिदिया अदा किया और शहर छोड़ दिया। उसके बाद एक हुजूम शहर छोड़ने वालों का बन गया। लोग फिदिया अदा करके शहर से बाहर जाने लगे। बैतुल मक़दस का बड़ा पादरी सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहा। कहा जाता है कि वो बहुत लालची और सख्त दिल था। वो चर्चों के ख़जाने, सोने के बर्तन, जेवरात और कीमती अशिया लेकर फिदिया अदा करके चला गया। कुछ लोगों ने सुल्तान से शिकायत की कि वो बूढ़ा बहुत सा माल साथ ले जा रहा है, मगर सुल्तान ने फरमाया, नहीं, उसे जो ले जाना है ले जाए, हम वादा तोड़ना नहीं चाहते। जब ज़्यादा लोग शहर छोड़ चुके और गरीब बाकी रह गए तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बेहद रहम का मुजाहरा करते हुए उनका फिदिया खुद अदा किया और उन्हें आज़ाद कर दिया। इस मौके पर बैतुल मक़दस में अजीब मनाजिर देखने को मिले। बेशुमार औरतें सुल्तान के पास रोती हुई आईं। सुल्तान ने पूछा, ये औरतें क्यों रो रही हैं, ये क्या चाहती हैं? बताया गया, ये उन सरदारों की बेवियां और बेटियां हैं जिन्हें सुल्तान ने जंग में कैदी बनाया है। ये चाहती हैं कि उनके शौहरों को रिहा कर दिया जाए। कहा जाता है कि जब वो औरतें रो रही थीं, सुल्तान भी उनके सामने खड़ा रो रहा था। उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया कि उनके शौहरों को रिहा कर दिया जाए। इसी मौके पर एक ईसाई औरत सुल्तान के पास आई। उसका बच्चा कहीं खो गया था। वो रोते हुए सुल्तान से इल्तिजा करने लगी कि उसका बच्चा ढूंढ कर दे दिया जाए। सुल्तान के दिल पर ऐसा असर हुआ कि उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने फौरन हुक्म दिया कि बच्चा तलाश किया जाए। सुल्तान के हुक्म पर फौज हरकत में आई और उस औरत का बच्चा तलाश कर लिया गया। सुल्तान ने खुद बच्चा उस माँ को वापस दिया। वो औरत सुल्तान को दुआएं देती हुई रुखसत हुई। यूं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस को फतह किया, जैसा कि पहले ईसाइयों ने इस शहर को फतह किया था, मगर फतह का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था। मुसलमानों ने जब बैतुल मक़दस फतह किया तो रहम व करम का आला नमूना पेश किया, किसी को कत्ल न किया।